کچھ دیر اور آگے چلنے کے بعد دور سے وہ عمارت نظر آنے لگی جدھر کی انویسٹیگیشن کے لیے وہ یہاں آئے تھے۔ اس عمارت کے ارد گرد گھنا جنگل تھا، پیڑ اور درخت ایک دوسرے سے اتنے ملے ہوئے تھے کہ دن میں بھی شام کا سما محسوس ہو رہا تھا۔ وہ عمارت دور سے ہی دیکھنے میں ایک پوشیدہ ہال کھنڈر کا نقشہ پیش کر رہی تھی، جہاں بجلی، پانی اور دیگر سہولت کا کوئی گزر نہیں تھا۔ جگہ جگہ دیواروں سے اینٹیں جڑی ہوئی تھیں اور دور سے دیکھنے میں وہ ایک بھوت بنگلے کا مناظر پیش کر رہا تھا۔ اس ریسٹ ہاؤس کی عمارت تو زیادہ بڑی نہ تھی، مگر اس کے ارد گرد گھوڑوں کے اسطبل اور گاہے باندھنے کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ جگہ کئی اور مشغل کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ وہ سب ہی وہاں کی خاموشی اور ویرانی دیکھ کر خاموش سے ہو گئے تھے، مگر محسن، شہزاد اور ان کی ٹیم کے لیے، کیونکہ یہ معمول کی بات تھی، اس لیے وہ سب نارمل ہی تھے۔ محسن نے شہزاد بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یار شہزاد، اس ریسٹ ہاؤس کی خستہ حالی دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہاں کیا معاملات رہے ہوں گے۔ اس نے آنکھوں سے سن گلاسز اتارتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ شہزاد، جو پارکنگ کے لیے مناسب جگہ تلاش کر رہے تھے، اس کی بات کے جواب میں بولے، ہاں یار، دیکھنے میں تو خاصی مخدوش حالت محسوس ہو رہی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ پراسرار ہے۔ باقی معاملات تو اندر جا کر ہی پتہ چلیں گے۔ کہتے ہوئے گاڑی اس کھنڈر نما عمارت کے نزدیک لے جا کر روک دی اور انجن بند کر دیا۔ سب سے پہلے وین سے محسن باہر نکلا اور اس نے باہر نکل کر وین کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ زید، عاطف اور سہیل بھائی اپنے آکوپیمنٹ سنبھال کر باہر آئے۔ ان کے بعد سب سے پہلے کرن باہر نکلی، مگر اتنی دیر سمیٹ کر بیٹھنے کے بعد ٹانگیں اکڑ گئی تھیں۔ وہ ترتے ہی لکھڑا گئی۔ بے خیالی میں سہارے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور تب بھی اس کا ہاتھ مضبوط گرفت میں آ گیا۔ ساتھ ہی کانوں میں مانوس آواز آئی۔ سنبھل کے اس نے آواز پر نظریں اوپر اٹھائیں اور براہ راست اس کی نظریں ان ذہین آنکھوں سے مل گئیں۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی اور محسن نے اس کو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سوہا اور ثنا اس کے پیچھے ہی وین سے باہر نکلی تھی۔ اس کو گرتے اور پھر سنبھلتے دیکھا تو گھبرا کر ایک ساتھ پوچھ لیا، کیا ہوا آپی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کرن نے سنجیدہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہوں میں، کہتے ہوئے اپنا کاٹن کا بڑا سا دوپٹہ جو شانوں پر ڈھلک آیا تھا درست کرتے ہوئے اس سائیڈ سے جہاں وہ کھڑا تھا آگے بڑھ گئی۔ ثنا اور سوہا نے اس کی بد اخلاقی نوٹ کی اور اس کی بات کا اثر ظاہر کرنے کی خاطر مسکرا کر محسن سے بولی، تھینک یو محسن بھائی۔ اس نے سر کو ذرا سا خم دے کر ان کا شکریہ قبول کیا اور وہ دونوں اس سمت بڑھ گئیں جہاں وہ کھڑی تھی، جبکہ وہ گردن گھما کر اس سمت دیکھنے لگا جہاں وہ ثنا اور سوہا کے ساتھ کھڑی تھی۔ اتنی دور سے لفظ تو سمجھ نہیں آ رہے تھے، مگر اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ خاصی اکتائی ہوئی ہے۔ وہ وہیں متوجہ تھا جب گاڑی میں سے باقی لوگ بھی باہر نکل ایک جگہ کٹھے ہو گئے۔ زید اور عاطف اپنی جدید اکوائپمنٹ کی مدد سے مختلف رینگنگز لے رہے تھے، جبکہ سہیل بھائی اپنا کیمرہ سنبھالے اہم جگہوں کی تصویریں لے رہے تھے۔ شہزاد بھائی ابھی بھی اس جگہ سے متعلق اہم معلومات بتا رہے تھے اور وہ سب ہی ان کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ وہ ان سب کے نزدیک پہنچا تو شہزاد بھائی اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، محسن، یہ عمارت تو قریب سے دیکھنے میں اور بھی زیادہ مخروش اور پوشیدہ لگ رہی ہے۔ وہ جو اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھنسائے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا، ان کی بات کے جواب میں بولا، نہ صرف مخدوش لگ رہی ہے بلکہ ارد گرد کا ماحول بھی ویران اور پراسرار لگ رہا ہے۔ اس نے یہ بات عام سے انداز میں کہی تھی جیسے معمول کا حصہ ہو، مگر اس بات سے لڑکیوں کے چہروں پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس نے ان سب کے خوفزدہ چہروں پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی اور بات آگے بڑھاتے بولا، سہیل بھائی ذرا اس طرف آگے آئیے گا، یہ شوٹ کیجیے گا۔ اس کی نشاندہی پہ سہیل بھائی اس جگہ کو شوٹ کرنے لگے، جبکہ وہ بولا، یہ کس چیز کے نشان ہیں؟ وہ بلڈنگ کے مین ڈور کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ سب خوف زدہ ہونے کے باوجود
तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वहां आकर देखने लगे कि वो किस चीज की निशानदही कर रहा है। सबसे पहले शहजाद भाई ही बोले, यार अल्लाह माफ करे, क्या ये वही चीज है जो मैं सोच रहा हूँ? कहते हुए मोहसिन को देखा, जबकि वो पुरसरार अंदाज में बोला, लग तो ऐसा ही रहा है कि ये सांप के रेंगने के निशान है। कहते हुए लड़कियों पे एक और गहरी नजर डाली, जिनके चेहरों से इनके अंदर का खौफ वाज़ेह था। सबसे पहले अनुषा की आवाज आई, सांप! उसकी आंखें तकरीबन फटने के करीब थी, जबकि सना, सोहा और किरण की हालत भी ऐसी ही थी। शहजाद साहब जब सबको खबरदार करने की खातिर बोले, हाँ भाई जरा इख्तियार से, यहाँ सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। फिर मौसम को मुखातिब करते हुए बोले, यार जितने लोगों से हमने इस जगह के बारे में मालूमात लेने की कोशिश की, इन्होंने अव्वल तो कुछ बताने से ही इनकार कर दिया, और जो लोग राजी हुए उन्होंने भी खास खौफजदा अंदाज में यही बताया कि यहाँ आग के गोले उठते हुए दिखे, जो उनके लिए खौफ का बासित है। मोहसिन ने उनकी बात के जवाब में कहा, हाँ जगह तो फॉर श्योर हॉन्टेड है, आओ अंदर चलते हैं। कहते हुए उस रेस्ट हाउस के खंडहर का मेन डोर खोलने की कोशिश की, जो जंग की वजह से बामुश्किल ही खुल पाया। उसकी बेहंगम आवाज पूरे माहौल में फैलकर माहौल को और पुरसरार बना गई, और इन सब के दिल दहल से गए। इर्द गिर्द मौजूद परिंदे इस आवाज से डर कर दरख्तों से उड़ गए, और फिजा में उनका शोर सुनाई देने लगा। मोहसिन ने सबको अंदर जाने का इशारा किया, वो सब भी इर्द गिर्द देखते अंदर दाखिल हो गए। शहजाद साहब ने मोहसिन को मुखातिब किया, यार ये जाले देख रहे हो, ऐसा लगता है कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। मोहसिन ने इसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, और ये डस्ट की लेयर देखो तो ऐसा लगता है यहाँ कोई आता जाता ही नहीं है। कहते हुए उसने अगला दरवाज़ा खोल दिया, और तभी इसकी आवाज़ पर वो सब उसकी समझ मुतवज्जो हो गए। ओए होए, ये देखो सारा सामान कैसे बिखरा हुआ है, जैसे कोई जल्दी में भागा हो। जैद इसकी बात के जवाब में बोला, और ये सामान तो काबिल इस्तेमाल लग रहा है। तभी उन लड़कों में एक लड़का है, ज़ोहेर, जो उन सबके साथ आया था, खौफजदा आवाज में सबको मुखातिब करते हुए बोला, उफ उफ, कितनी छिपकलियां हैं यहाँ। साथ ही अपनी जगह से उछला। जैद ने फ्लोर पर देखते हुए कहा, अरे जमीन पर चल रही हैं ये तो। और लड़कियों के मुंह से चीखें निकल कर सुनसान फिजा में फैल गई। मोहसिन जो पहले ही जच आया हुआ था इन सब के इस तरह चीखने पर, ऊंची आवाज में बोला, इनफ इज इनफ। उसकी आवाज का रौब ही काफी था कि सबकी चीखें हलक में ही दम तोड़ गईं। मगर वो बरहम से अंदाज में बोला, सिर्फ छिपकली से इतना डर लगता है? अगर असलियत में कोई सांप या गैर मरी मखलूक सामने आ गई तो क्या करेंगी? इसकी डांट पर वो सब की डरने के बावजूद खामोश हो गई। शहजाद भाई ने उसका गुस्सा देखकर उसको ठंडा करने के लिए उसका कंधा थपथपाया, जबकि वो जैद को जताती नजरों से घूर रहा था, और जैद इर्द गिर्द देखते हुए उसकी नजरें अवॉइड कर रहा था, जो उससे कह रही थी, मैं इसलिए मना कर रहा था। शहजाद भाई की संगत में सब इमारत से बाहर आ गए, और सब अब उनका रुख उस तरफ था जहाँ अस्तबल और बारन बने थे। खादार और नाहमवार रास्ते पे चलना मुश्किल हो रहा था, मगर वो सभी आगे बढ़ रहे थे। इन खंडरात नुमा जगह के करीब पहुंचकर इर्द गिर्द का जायजा लेते ये बात वाज़ेह थी कि ये जगह हॉन्टेड है। तभी जैद की आवाज़ ने सबको मुतवज्जो कर लिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड! शहजाद और मोहसिन एक साथ, क्या हुआ? जैद इन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ रेडिंग मौजूद है। कहते हुए अपनी डिवाइस जिस पर हॉन्टेड चेक कर रहा था, इस दोनों के सामने कर दी। मोहसिन ने एक नज़र डिवाइस पर डालकर पुरसोच अंदाज में कहा, यहाँ रेडिंग का क्या सवाल, यहाँ तो ना बिजली है और ना ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स। जैद ने इसकी बात के जवाब में कहा, इट्स इज अमेजिंग। आतिफ ने भी इसकी तारीफ की, इसका मतलब है कि यहाँ ज़रूर कोई ना कोई पर्सन्स मौजूद है। इस बात पर उन सब के जिस्मों में फिर फिरकी दौड़ गई, और चेहरे पर खौफ के बावजूद वो सब ही पुरजोश हो गए, सिवाय एक चेहरे के जिस पर फिक्रमंदी के अलावा परेशानी भी साफ पड़ी जा रही थी। मोहसिन ने एक गहरी नज़र उस पर सोच और परेशान चेहरे पर डाली और बोला, मेरा ख्याल है यहाँ
यही टाइम मुनासिब है जब ये फैसला कर लेना चाहिए कि सफ़र में आगे बढ़ना है या वापस जाना है। उसका लहजा जताता हुआ था। किरण ने चौंक कर उसको देखा और नज़रें बराह रास्त उसकी नज़रों से मिल गईं। सना और सोहा जल्दी से बोली, अब इतनी दूर आए हैं तो ऐसे तो वापस नहीं जा सकते ना। कहते हुए किरण को देखा मगर उसने कोई जवाब दिए बगैर रुख मोड़ लिया। उसके अंदाज पर मोहसिन ने भी कंधे झुका दिए। शहजाद भाई ने सबको मुखातिब करते हुए कहा कि यहाँ का डे विजिट करने से ये तो वाज़ेह हो गया कि ये जगह पुरसरार है। अब इस ऐसा करते हैं कि अभी वापस चलते हैं, फिर रात में वापस आते हैं। मोहसिन इसकी बात की तस्दीक करते हुए हाँ ठीक है कहते हुए वो वैन की समझ बढ़ गया और वापसी के रास्ते उसने सेट सेटनिंग अरेंजमेंट इस तरह करवाई कि लड़कियां बैक सीट पर, इसके बाद जैद, आतिफ और सुहेल भाई, और ड्राइविंग सीट के पिछली सीट पर जहीर और अब्बाद थे। वो इस वक्त तक डोर के पास खड़ा रहा जब तक सब बैठ नहीं गए। सबके बैठते ही उसने वैन का स्लाइडिंग डोर बंद कर दिया और नादस्ता नज़र उस चेहरे पर गई थी जिस पर इम्तनान छा गया था। उसे नज़र मिलाने पर उसको ना जाने क्यों ये लगा कि उसकी नज़रें उसका शुक्रिया अदा कर रही हैं। उसने सर को ज़रा सा खम दिया और बालों में हाथ फेरता फ्रंट सीट पर बैठ गया और उसके बैठते ही शहजाद भाई ने गाड़ी स्टार्ट करके वापसी के रास्ते पर डाल दी। वो सब रेस्ट हाउस वापस आ गए थे। मोहसिन और उसकी टीम तो वहाँ होने वाले शूट की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए थे जबकि वो उठकर अपने रूम में आ गई जो उन सबको मिला था। सोहा और सना पहले ही वहाँ मौजूद थी और काफ़ी एक्साइटेड और खुश थी। वो खामोशी से आकर एक चेयर पर बैठकर इन दोनों की बातें सुन रही थी। सना सोहा से कह रही थी, यार सना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, ये भी लाइफ का एक थ्रिल है। सना पुरजोश अंदाज में इसकी बात की तस्दीक करते हुए बोली, हाँ डर भी लग रहा है मगर एक्साइटमेंट अपनी जगह है। सोहा उसकी बात के जवाब में बोली, उससे पहले ज़ायद कभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता तो मैं हैरान होती थी कि क्या ये सच कह रहा है, मगर अब तो सब अपनी आंखों से देखने का मौका मिल गया है। सना पुरजोश सी आवाज़ में, ना सिर्फ देखने का मौका मिलेगा बल्कि खुद एक्सपीरियंस करने का मौका भी मिलेगा। सोहा ने भी तर्दीद अंदाज में सर हिलाया मगर अब वो खामोश ना रह सकी। जो इतनी देर से इन दोनों की बातें इस खामोशी से सुन रही थी, उसे सब्र ना हो सका तो बोल पड़ी, तुम दोनों अभी भी इस जगह जाने के बारे में सोच रही हो? इसकी आवाज़ में ना सिर्फ हैरानगी थी बल्कि चेहरे पर भी बेयकीनी रकम थी। सना और सोहा ने कंधे उचका दिया। सना इसकी बात का जवाब देते हुए बोली, तो हम आए किस लिए हैं आप ही? किरण ने हैरान नजरों से उसको देखा और बोली, इस जगह को अपनी आंखों से देखने के बावजूद तुम अब भी वापस जाने पर बज़िद हो, कुछ तो होश के नाखुन लो। सना ने उसकी बात को अहमियत ना देते हुए हल्की फुल्की अंदाज में कहा, ओहो आपी, अब इतनी दूर आए हैं तो एक बार जाना तो बनता है। जब सोहा बोली, और इस जैद के बच्चे को जानती हैं ना आप? किरण ने आंखें कर कर उसको देखा तो वो इसी अंदाज में बोली, कितना मजाक उड़ाएगा वो हमारा। उसकी बात पर वो साथ थाम कर रह गई मगर समझाते हुए बोली, मैं किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। साथ ही मौसम का अंदाज याद आया तो अंदर ही अंदर तल मिला गई मगर इन दोनों पर कोई भी तासर दिए बगैर इन दोनों को बहलाते हुए बोली, देखो मेरी बात मानो तो वापस चलो। देखा नहीं था कि कितनी वीरान और सुनसान जगह थी। उस जगह को याद करते हुए उसने बाकायदा झुरझुरी ली जबकि सना उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली, तो आप ही, यही तो थ्रिल है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। जब किरण ने देखा कि इन दोनों पर इसकी किसी नसीहत और डरावे का असर नहीं हो रहा तो वो धमकी अमेज अंदाज में बोली, देखो अगर तुम दोनों अब भी नहीं मानी तो मैं मामू को कॉल कर दूंगी। इसकी धमकी पर वो दोनों संजीदा हो गई और उसको समझाते हुए बोली, आप ही प्लीज़ अब ये तो ना करें, और फिर इतने लोग हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। इन दोनों को संजीदा देखकर वो भी कुछ नरम पड़ गई और बोली, गुड़िया, इसीलिए ऐसी जगहों पर जो खतरात होते हैं वो तुम भी जानती हो। सना उसकी बात के जवाब में बोली, अच्छा मसलन कैसे खतरात? उसने मजाक में ये बात कही मगर किरण संजीदा ही रही और संजीदगी से बोली, तुमने सुना नहीं था कि वो क्या कह रहे थे? सना ने हैरानी से इसको देखकर पूछ लिया, कौन क्या कह रहे थे?
اس کے سوالیہ انداز پر اس نے بامشکل اپنے اوپر قابو پا کر کہا، وہ محسن۔ لہجہ خود بخود دھیما ہو گیا اور اس کا نام لیتے ہوئے ایک جھجک سی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی کیفیت پر خود بھی جھنجھلا گئی۔ سوہا اس کی بات پر اس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا کہہ رہے تھے محسن بھائی؟ ان دونوں کی سوالیہ نظریں محسوس کر کے اس نے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے جواب دیا کہ وہاں نہ صرف غیر مرئی خطرات ہو سکتے ہیں بلکہ سانپ بچھو بھی ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہوئے پھر جھرجھری لی۔ ثنا نے بات سمیٹتے ہوئے کہا، یہ تو اور بھی تھرلنگ ہوگا۔ میں نے زندگی میں کبھی اصلی سانپ نہیں دیکھا۔ کرن نے بے یقین نظروں سے اس کا جوش ملاحظہ کیا۔ ابھی کچھ کہتی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سب دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ ثنا کے کہنے پر دروازہ کھولا اور زید کا چہرہ نظر آیا۔ وہ اندر جھانکتے ہوئے ان سب سے بولا، آپ سب ریڈی ہیں؟ ثنا اور سوہا خوشی خوشی بیڈ سے اترتے ہوئے بولی، ہاں سب ریڈی ہیں۔ تو پھر آ جائیں، شہزاد بھائی اور محسن بھائی ویٹ کر رہے ہیں۔ پیغام دے کر وہ پلٹ گیا اور وہ دونوں بھی خوشی خوشی اس کی تقلید میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ کرن نے بے یقینی سے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا، جیسے یقین نہ ہو کہ دونوں ابھی بھی اس جگہ جانے پر راضی ہیں۔ سوہا کو ہی اس کا خیال آیا تو رکتے ہوئے بولی، آپ ہی چلیں، وہ سب ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کے کہنے پر اس نے جیسے ہتھیار ڈال دیا اور گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈھیلے قدموں سے چلتی ان کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئی۔ وہ تینوں آگے پیچھے چلتی باہر آئی تھیں اور وین کے سمت بڑھی تھیں۔ ثنا اور سوہا جتنی ایکسائٹڈ اور خوش نظر آ رہی تھیں، کرن کے چہرے پر اتنی فکر اور پریشانی تھی، اور یہ بات اس کے چہرے سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس پر سب سے پہلی نظر محسن کی ہی پڑی تھی، جو وین کے پاس کھڑا اپنا فون چیک کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب وہاں اکٹھا ہو گئے اور محسن کے ہی کہنے پر سب کار میں بیٹھ گئے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ سیٹ ارینجمنٹ وہی رہے جو اس نے شام میں کروائی تھی۔ جب سب کار میں بیٹھ گئے تو اس نے وین کا ڈور بند کر دیا اور غیر دستگی میں کھڑکی میں نظر آتے چہرے پر گئی۔ وہ اس کو ہی دیکھ رہی تھی اور وہ کچھ بھی کہے بغیر فرنٹ ڈور کھول کر خود بھی اندر بیٹھ گیا، اور اس کے بیٹھتے ہی وین ایک بار پھر چل پڑی۔ کچھ دیر بعد ان کی وین اسی جنگل میں داخل ہو رہی تھی جہاں وہ شام میں آئے تھے، مگر تاریکی اور خاموشی کے باعث اس جگہ کی ہولناکی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ غیر محسوس طور پر ان سب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ تبھی شہزاد بھائی کی آواز گونجی، محسن، ہم اس جگہ پر پہنچنے والے ہیں جس کی ڈے ریکنگ ہم نے آج کی ہے۔ ان کی بات کے جواب میں وہ کار سے باہر دیکھتے ہوئے بولا، یار رات کو تو اس جگہ کی ہیبت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ شہزاد بھائی اس کی بات کی تصدیق میں بولے، یار محسن، علاقہ مکین تو رات کو اس طرف آتے بھی نہیں ہیں۔ اس نے ٹارچ کی ناکافی روشنی کار سے باہر ڈالتے ہوئے جواب دیا، وہ تو یہاں کا ماحول دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے۔ یہاں کی ویرانی اور وحشت اس بات کی گواہ ہے کہ یہاں اس وقت کوئی انسان تو کیا، جانور بھی یہاں نہیں آتا ہوگا۔ اس کی بات کسی بھی کمزور دل والے انسان کو دہشت زد کرنے کو کافی تھی۔ شہزاد بھائی اضطراب میں سر ہلاتے ہوئے بولے، علاقہ مکین کے مطابق وہ مغرب کے بعد یہاں آنے سے گریز کرتے ہیں، تو اس وقت تو کسی کی یہاں موجودگی ناممکن ہی ہے۔ ان کی تمام باتوں کی تصدیق اس بات سے ہو رہی تھی کہ وین کے ارد گرد گھنا جنگل تھا اور کسی قسم کی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ صرف وین کی ہیڈ لائٹس تھیں جو اس اندھیرے میں ان کی مددگار ثابت ہو رہی تھیں۔ کرن جو راستوں پر نظر جمائے ہوئے تھی، ان دونوں کی بات پر اس کو خوف سا محسوس ہوا۔ اس نے راستے پر سے نظر ہٹا کر آیت الکرسی کا وار شروع کر دیا۔ اس وار سے دل کو کچھ دھارس ملی اور اسی دوران ان کی وین جنگل سے گزر کر اس ریسٹ ہاؤس کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس عمارت کے احاطے میں پہنچ کر وین رک گئی اور شہزاد بھائی نے انجن بند کر دیا۔ وہ سب ہی چونک کر ارد گرد نظریں دوڑانے لگے۔ سوہا ثنا کے کان میں سرخوشی کرتے ہوئے، رات کے اندھیرے میں کتنی خوفناک لگ رہی ہے یہ جگہ، مجھے تو خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی بات کے جواب میں ثنا بھی ڈری ڈری آواز میں بولی، ہاں ویسے تو شام کے وقت ہی یہ جگہ اتنی ہانٹڈ محسوس ہو رہی تھی، اب تو اور بھی وحشت محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے بھی سرگوشی کے انداز میں جواب دیا، مگر کرن نے سن لیا اور جھڑکتے ہوئے بولی، میں نے تم دونوں کو پہلے ہی منع کیا تھا، مگر تم دونوں کسی کی سنتی کب ہو۔ وہ بمشکل اپنی آواز دھیمی رکھ پائی۔ اس کی بات پر وہ دونوں بھی خاموشی سی ہو گئیں، مگر اب شاید واپسی ممکن ہی نہیں تھی۔ وہ سب ہی ایک ایک کر کے وین سے باہر آئے۔ سب سے آخر میں انوشا باہر آئی اور اسے ناز و انداز سے اپنا بڑا سا قیمتی ہینڈ بیگ محسن کو پکڑانا چاہا، جو زید کا ساتھ کھڑا کوئی
जो कोई कमेंटेड चेक कर रहा था। इसके हैंडबैग पर एक नज़र डालकर उसके चेहरे पर एक संजीदा निगाह डाली और किसी को भी मुखातिब किए बगैर बोला, मैं आप सबको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि ये कोई पिकनिक स्टॉप नहीं है और ना ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और घोस्ट हंटिंग कोई मजाक है। हम यहाँ काम करने आए हैं। जिस तरह का ये काम है जहाँ किसी भी किस्म का खतरा या पोलिटिशियन थ्रेट हो सकता है, और इससे मुराद किसी भी तरह का खतरा आया वो खतरा इंसानी हो, हैवानी या फिर गैर मरी, तो आप सब इसको एंजॉयमेंट का जरिया ना समझे तो बेहतर होगा। कहते हुए संजीदगी से अनुषा को देखा जो मुंह बनाए इसकी तकरीर सुन रही थी, और बात आगे बढ़ाते हुए बोला, और किसी भी गैर ज़रूरी सामान को साथ लेकर ना जाएं सवाए इन डॉक्यूमेंटेड के जो इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी मददगार होंगे। कहते हुए अनुषा के मेकअप भरे बैग को देखा। इसका तंज ना सिर्फ अनुषा ने महसूस किया बल्कि साथ खड़े जैद और आतिफ ने भी महसूस कर लिया। बहुत मुश्किल अपनी मुस्कुराहट का गला घोंटा, जबकि मोहसिन ने अनुषा का बड़ा हुआ हाथ भी नज़रअंदाज कर दिया और मुड़कर सोहेल भाई से कुछ डिस्कस करने लगा। जैद ने इसकी तरफ से अनुषा से माजरत भी की, मगर वो मुंह बनाकर जोहीर और आबाद की समझ बढ़ गई। जैद ने उसके जाने के बाद अपने पीछे खड़े मोहसिन को मुखातिब करते हुए कहा, क्या मोहसिन भाई, क्या ज़रूरत थी इतना रूड होने की। वो बिना उसकी समझ नज़र डाले अपने काम में मसरूफ रहा, मगर जवाब में बोला, तुम जानते हो मैं ऐसा ही हूँ। आतिफ ने मामला रफा दफा करवाते हुए कहा, चलो छोड़ो, काम पे फोकस करो। मोहसिन ने उसकी बात की तस्दीक करते हुए जवाब दिया, एग्जैक्टली यही तो मैं भी कह रहा हूँ, एग्जैक्टली यही तो मैं भी कह रहा हूँ। कहते हुए अपना बैग पैक जिसमें उसके इक्विपमेंट्स थे और टॉर्च संभाल कर इस रेस्ट हाउस की इमारत की समझ बढ़ गया जिसे इन्वेस्टिगेशन करने वो यहाँ आए थे। वो सब ही इर्द गिर्द देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। लड़कियां यहाँ आते हुए जितनी पुरजोश थी अब इतनी खौफजदा थी, चौंकना नजरों से इर्द गिर्द देखती एक दूसरे के करीब तक चल रही थी। अंदर दाखिल होने से पहले शहजाद भाई की आवाज़ आई जो सबसे मुखातिब थे, सब एक दूसरे के साथ साथ और करीब करीब रहना, डर मत जाना, दूर मत जाना। जैद ने इनकी तारीफ करते हुए कहा, हो सके तो एक दूसरे के हाथ पकड़ लो। सोहा जो इसके साथ ही चल रही थी आहिस्ता आवाज में इससे बोली, तुमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। जैद ने सवाली नजर इस पर डाली और वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोली कि ये काम इतना खतरनाक है। इस बात पर जैद ने उसको घूर कर देखा और जवाब देते हुए कहा, तो तुम क्या समझ रही थी कि हम यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। लहजा तंजिया था मगर सना बुरा बनाए बगैर बोली, सच पूछ तो मैं तो यही समझती थी कि जो कुछ तुम लोग स्क्रीन पर दिखाते हो वो फेक होता है। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि इस में कितनी सच्चाई है। जैद इसी तंजिया लहजे में बोला, ओ भाई, तुमने अभी सुना नहीं मोहसिन भाई ने क्या कहा है कि ये सब मजाक नहीं हो रहा। सना ने जवाब में उसको घूर के देखा और बोली, हाँ तो सुन लिया ना और देख भी लिया। कहने को तो इसने कह दिया था, ये अलग बात है कि डर के मारे हालत गैर थी। वो सब टॉर्च की नाकाफी रोशनी में इस समझ बढ़ रहे थे जहाँ वो रेस्ट हाउस की इमारत थी, जब अचानक जैद और आतिफ अपनी जगह पर उछल से गए। इन दोनों के इस तरह उछलने पर लड़कियों की चीखें बेसाख थीं। मोहसिन और शहजाद भाई ने एक साथ पूछा था, क्या हुआ क्या हुआ। जवाब में आतिफ ने इन दोनों से कहा, ऐसा लगा कि पैरों के पास से कोई चीज़ रेंगती हुई गई हो। मोहसिन संजीदगी से, बकवास ना करो। जैद पैरों के पास कुछ तलाश करते हुए बोला, सच कह रहा है ये, मैंने भी ऐसा ही महसूस किया है। शहजाद भाई उसको देखते हुए बोले, ना करो यार, सच कह रहा हूँ। मोहसिन टार्च की रोशनी जमीन पर मारते हुए बोला, शाम में सांप के निशान तो हमने वाजे देखे थे, क्या पता सांप ही हो। उसकी बात ही खौफजदा कर देने वाली थी। लड़कियों ने दहल कर एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। किरण जो इतनी देर से खामोश थी उसे बर्दाश्त ना हुआ तो बोली, आप सब ऐसी बातें करके हमें मजीद खौफ में मुतलबा ना करें। वो काफ़ी देर से खामोश थी, इसीलिए उसके जब बोलने पर सब एक साथ इसकी समझ मुतवज्जो हो गया और सब
के एक साथ उस तरह मुतवज्जो होने पर वो घबरा सी गई। मोहसिन के होठों पर तंजिया सी मुस्कुराहट फैल गई, जबकि शहजाद भाई तसल्ली देने की खातिर बोले, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। उसके कहने पर वो सर झटक कर आयतल कुर्सी का गौर करने लगी। वो सभी आगे बढ़ रहे थे जब जैद ने चीख कर सुहेल भाई को खबरदार किया, सुहेल भाई आपके पीछे कुछ है। किसी की मौजूदगी से ज्यादा वो सभी इसकी चीख से डर गए। लड़कियों को तो लगा कि दिल ही बाहर आ जाएगा, जबकि मोहसिन इसको तनबिया करता हुआ बोला, शाउट मत करो। और फिर इन सब से मुखातिब होते हुए बोला, और आप सबको इतना ही डर लगता है तो यहाँ आने के लिए किसने कहा था। उसकी नज़र सना और सोहा से होती हुई किरण के चेहरे पर अटक गई, जिसका चेहरा खफ़त से सुर्ख हो गया था। वो एक नज़र इन दोनों को देख कर रुख मोड़ गई थी, जबकि सना और सोहा को भी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। वो इन सब को सुना के पीछे की समझ गया जहाँ जैद ने इशारा किया था। शहजाद भाई अपने मखसूस अंदाज में बोले, यार क्यों जान निकाल रहे हो सब। जबकि लड़कियां खौफ ज़दा अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। मोहसिन ने तसल्ली से इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए जैद से पूछा, जैद क्या देखा था तुमने। जैद अपना खुश्क गला साफ करते हुए बोला, मैंने कोई शबिया सी देखी थी। इस दरख्त के ऊपर ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल सुहेल भाई के सर पर आ रही हो। तभी तो मेरी बेसाख चीख निकल गई। इसकी निशानदेही पर मोहसिन ने डिजिटल कैमरे की मदद से चंद पिक्चर्स ली और कैमरा शहजाद के सामने कर दिया, ये कहते हुए, जी सर, बिल्कुल हर पिक्चर में क्लियर और बन आए हैं। शहजाद भाई ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, चलो आगे चलते हैं। इनकी पैरवी में सब आगे बढ़े और कुछ ही देर में इस खंडरात नुमा गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने पहुंच गए। मोहसिन ने इसकी टॉर्च घुमाई, जबकि शहजाद भाई ने उसको मुखातिब करते हुए कहा, मेरा ख्याल है मोहसिन जगह बहुत बड़ी है, इस स्प्लिट हो जाते हैं, क्या ख्याल है। इनके पूछने पर उसने ताकीदी अंदाज में सर हिलाया और बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है, इस तरह हम ज़्यादा बड़ा एरिया इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे। शहजाद भाई ने साहबत में सर हिलाया तो वो पूछने लगा, जंगल की साइड कौन जा रहा है। शहजाद भाई अपने मखसूस अंदाज में बोले, तुम जंगल की साइड को कवर कर लो। मोहसिन सर हिलाते हुए, ठीक है, मेरे साथ कौन आ रहा है। उसने अपने घने बालों में आदत के मुताबिक हाथ फेरते हुए पूछा। शहजाद साहब इसको जवाब देते हुए बोले, आतिफ और ज़हीर तो अपने साथ ले जाओ, इसके अलावा अनुषा और किरण भी तुम्हारे साथ जाएंगी। और वो जो ज़हीर और आतिफ के नाम सुनकर मुतमिन हुआ था ही अंदर तलमला गया और बेसाख नजर उसके चेहरे की समत उठ गई। वो भी परेशान नजरों से इसकी समत मुतवज्जो थी। अब उसके चेहरे पर खौफ के अलावा फिक्र और तसदुस भी छा गया था। वो अपने आप को बामुश्किल कुछ भी कहने से रोक पाया और होंठ बेचकर अपना बैग पैक और टॉर्चर उठाकर आगे की समत बढ़ गया। और ज़हीर और आतिफ के अलावा नूशा अपनी कुछ देर पहले हुई बेइज्जती भुलाए खुशी खुशी उसके पीछे चल पड़ी। सिर्फ वही थी जो गुमसुम सी वहीं खड़ी थी, जैसे किसी मुजस्मे में तब्दील हो गई हो। शहजाद भाई की नज़र उस पर पड़ी तो उसको मुखातिब करते हुए बोले, किरण आप भी मौसम के साथ जाएं। उनके कहने पर उसने मरता क्या ना करता के मुदाफ़िर सर साहबत में हिलाया। वो शायद इसकी कैफियत समझ गए थे, इस तसल्ली देते हुए बोले, बी ही ब्रेव। उनके हिम्मत दिलाने पर भी उसको उसकी कैफियत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। सोहा और सना ने भी इसकी हालत नोट कर ली तो उसके नज़दीक आते हुए बोली, आप ही अपना ख्याल रखिएगा। उसने अपनी नम आंखें उठाकर इन दोनों को देखा। उसकी आंखों में खौफ वाज़े पड़ा जा सकता था। सना ने उसको तसल्ली देते हुए उसके हाथ थामे और कहा, आप ही बी ब्रेव, ये अच्छा मौका है इन मोहसिन साहब को बताने का, आप बहुत बहादुर हैं। उसने जैसे जोश दिलाना चाहा, मगर किरण ये जानती थी कि ये मकसद तफल तसल्ली ही है। उसने ना तो ऐसी कोई चाह थी ना ही ऐसी ख्वाहिश। वो खामोशी से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकालकर बमुश्किल अपने आप को घसीटती आगे बढ़ी। अभी एक कदम भी बमुश्किल बढ़ाया होगा कि वो वापस आता नजर आया। उसकी भी पहली नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो वो गुस्सा जो उस वक्त वो दबा गया था दब कर आया, और उसी गुस्से के जेर असर वो बोला तो लहजा अच्छा खासा बदअखलाक था, मोहतरमा अब चलेंगी या 21 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी। इसके अंदाज पर किरण जैसी
मुस्तहमल मिजाज लड़की के भी तन बदन में आग लग गई, इसलिए वो भी जवाब में तल्ख अंदाज में बोली, आ रही हूँ, और अपना ये गुस्सा अपने जैसों को दिखाए। कहते हुए अपनी स्याह आंखें उसकी मदहोशकिन मखमूर आंखों में डाल दी। वो इसका तंज समझकर हैरान सा हुआ, फिर आंखों और चेहरे पर दिलचस्प तासुर छा गया। जबकि वो जज्बस होती आगे बढ़ गई, वो भी अपने घने सिल्की बालों में हाथ फेरता उसके पीछे हो लिया, मगर होठों पर सेहत तर्रास मुस्कुराहट थी जिसका कोई नाम नहीं था। सब ही आगे बढ़ते हुए जंगल का काफी हिस्सा अबूर कर आए थे। गेस्ट हाउस की इमारत काफी पीछे रह गई थी, और अब अंधेरे जंगल में वो स्टेबल जहाँ कभी घोड़े बांधे जाते थे और जो अब एक खंडर की सूरत इख्तियार कर गया था, इन सब की नज़रों के सामने था और एक हौलनाक मनाजर पेश कर रहा था। किरण इन सब के साथ चल तो रही थी, मगर उसका सारा ध्यान सना और सोहर की तरफ था, जिसकी वजह से वो आज इस मुश्किल में थी। दिल बिला वजह घबरा रहा था। उसने अपना ध्यान कुरानी आयात की तरफ लगा दिया। दिल ही दिल में वार करने से दिल को धारसी हुई। वो खंडर अब कुछ ही दूर रह गया था, जब इन सबको ही महसूस हुआ कि इनके अलावा कोई है जो इनके साथ साथ चल रहा है। सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज़ बेहद वाज़ेह थी। इन सब के कदम एक साथ रुक गए। मौसम की धीमी आवाज़ सुनाई दी। ये कैसी आवाज़ थी? ऐसा लग रहा था हमारे अलावा भी कोई है जो इन पत्तों पर चल रहा है। आतिफ ने इसकी बात के जवाब में कहा। ज़ोहीर इसकी बात की तस्दीक करते हुए बोला, मैंने भी ये आवाज़ सुनी थी। वो सब इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान दे रहे थे, जबकि अनुषा का ध्यान मोहसिन पे था। वो उसको मुखातिब करते हुए बोली, मोहसिन आप तो बहुत बहादुर हैं। ऐसी लोकेशन पर आकर इस तरह इन्वेस्टिगेशन करना कोई आसान काम नहीं है। मैं तो आपकी फ़ैन हो गई हूँ। मोहसिन ने जवाबन में एक नज़र अनुषा को देखा, फिर टॉर्च की रोशनी अपने दाएं जानिब डाली, जहाँ किरण अपना चेहरा दूसरी जानिब किए खड़ी थी, मगर टॉर्च की नाकाफी रोशनी में भी चेहरे के नागवार से तासरात साफ नजर आ रहे थे। अब अनुषा की तारीफ के जवाब में उसको कुछ तो कहना ही था, इसलिए वो उसको जवाब देते हुए बोला, शुक्रिया, आपने मुझे बहादुर बोला, मगर ये सब एक टीम एफर्ट होती है जिसमें तमाम टीम मेंबर्स को क्रेडिट जाता है, और आज तो आप भी टीम का हिस्सा हैं, तो आप भी इसी क्रेडिट में शामिल हैं। वो खासी देर से खामोश थी, मगर अब ना जाने क्यों बर्दाश्त कम पड़ गई और तलमला के बोली, बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जानबूझकर अपने आप को ख़तरे में डालना मेरे नज़दीक बेवकूफ़ी है। उसके इस तरह तलमलाने पर मोहसिन के होठों पर महफूज मुस्कुराहट फैल गई। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, आते सीयर्स फायर करवाते हुए बोला, मोहसिन भाई आगे चलते हैं। मैं तो कब से तैयार हूँ, यहाँ लोगों के लड़ने का शौक ही पूरा नहीं होते। कहते हुए वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराया और आगे बढ़ गया, जबकि वो तलमलाने के लिए पीछे रह गई। फिर कुछ ख्याल आने पर इन सब के हमकदम हो गई कि यहाँ अकेले खड़े रहना इसकी रिक्सी ही ना नहीं, खतरनाक भी था। वो सब इस खंडर के बिल्कुल सामने पहुंच गए थे, और टॉर्च की नाकाफी रोशनी और घने दरख्त के साए में घिरा और भी हौलनाक लग रहा था। मोहसिन टॉर्च की रोशनी बसीदा हाल छत पर डालते हुए बोला, ये देखो, ये आग के निशान है। जगह जगह ऐसा लग रहा है कि आग लगी हो। बाकी सब ने इसकी निशानदेही पर गौर से देखा। आतिफ पुरसोच अंदाज में जवाब देते हुए बोला, मगर यहाँ आग की क्या सोर्स हो सकती है? मोहसिन इसकी बात के जवाब में संजीदगी से बोला, यही तो सवालिया निशान है कि यहाँ ना तो बिजली है ना ही गैस, फिर ये आग कैसी लगी? और साथ साथ डिजिटल कैमरे से स्टिल फोटोग्राफी भी कर रहा था, जबकि आतिफ हैंडी कैम से शूट कर रहा था। उसने चंद क्लिक्स लिए और बोला, हर पिक्चर में सोल्ड बस है सोल्डवर बस है। कहते हुए डिजिटल कैमरा सामने किया। अनुषा दिलचस्पी लेती हुई पूछने लगी, ये और बस क्या होते हैं? मोहसिन इसको जवाब देते हुए बोला, और बस वो लाइट्स बॉल होते हैं जो स्टिल फोटोग्राफर में किसी भी गैर मर्जी नुक्ते को
کیپچر کر لیتے ہیں۔ اس نے حاضرین کی معلومات میں اضافہ کیا، یا پھر شاید خوف میں کرن اندازہ نہ لگا پائی، مگر اس وقت اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ہارٹ بیٹ خاصی تیز ہے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی اس کو خوف محسوس ہو رہا تھا، ورنہ وہ کوئی ڈرپوک لڑکی نہیں تھی، مگر شاید ماحول کا اثر تھا، یا پھر ان باتوں کا جو وہ اب تک سن رہی تھی کہ وہ اس وقت خوف میں مبتلا تھی۔ محسن کے جواب میں روحیر کی پرجوش سی آواز آئی، دیٹ از انٹرسٹنگ، جبکہ انوشا بھی بولی، اس کا مطلب ہے یہاں یقینی طور پر کوئی نہ کوئی پرسنٹ موجود ہے۔ محسن نے ایک نظر کرن کے ڈرے ڈرے چہرے پر ڈالی اور بولا، اس کا پتہ تو ہمیں جب چلے گا جب اس جگہ کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ان سب نے بھی اس کی پیروی کی۔ کرن غیر محسوس انداز میں انوشا کے نزدیک ہو گئی، تبھی پیر کے نیچے شاید کوئی پتھر آیا اور وہ لکھڑا گئی۔ عاطف نے فوراً ہی اس کو وارن کیا، سنبھل کے۔ اس کی وارننگ کے جواب میں محسن فوراً ہی پلٹا اور پوچھا، کیا ہوا؟ ساتھ ہی ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ تب تک وہ سنبھل چکی تھی، اس لیے سنجیدگی سے بولی، کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ اس کے جواب دینے پر وہ سر جھٹک کر رخ موڑ کر آگے بڑھنے لگا، مگر تنبیہ کرنا نہ بھولا، دیکھ کر چلنا، یہاں کانٹے بہت ہیں اور راستہ بہت خراب ہے۔ وہ سب اس کھنڈر کی انٹرس پر پہنچ گئے تھے اور اندر جانے کے لیے پہلا قدم بڑھایا تھا کہ ایک تیز چیخ سنائی دی، جس سے کوئی خبردار کر رہا ہو۔ وہ سبھی ٹھٹک کر رک گئے، خوف سے جس نے خون رگوں میں جمنے لگا۔ محسن جو سب سے آگے تھا، ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے بولا، یہ کیسی آواز تھی؟ ابھی کوئی جواب میں کچھ کہتا کہ نزدیک سے ایسی آواز آئے جیسے کوئی غرایا ہو۔ وہ سبھی خوف زدہ ہو کر اپنی اپنی جگہ منتظر ہو گئے، مگر محسن اور عاطف کیونکہ عادی تھے، ان کے لیے یہ سب ہی معمول کا حصہ تھا، اسی لیے وہ دونوں مطمئن رہے۔ محسن اس آواز کے جواب میں بولا، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمیں کوئی وارننگ دے رہا ہو۔ عاطف تدبیری انداز میں بولا، خاصی خطرناک وارننگ تھی۔ محسن نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر قدم آگے بڑھایا، اور تبھی کوئی تیز آواز میں چلایا، چلا جا۔ چلانے والا نظر نہیں آیا، مگر ان سب کے خون جیسے رگوں میں جم گئے۔ محسن سب کو تسلی دیتے ہوئے بولا، ایسی آوازیں آئیں گی، ہم کو ڈرایا بھی جائے گا، بس ڈرنا نہیں ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور ہو سکے تو ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لو۔ اس کے کہتی انوشا نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ محسن نے ایک نظر اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ پر ڈالی، تیش تو آیا مگر ضبط کر گیا، سہولت سے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکال لیا اور ٹارچ لے کر آگے بڑھ گیا، جبکہ کرن نہ کہہ کر رخ موڑ گئی۔ ارد گرد سے ابھی دل دہلانے دینے والی آوازیں آ رہی تھیں، مگر وہ سبھی آگے بڑھتے ہوئے اس کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتی آس پاس سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں، جسے وہ کسی نادیدہ چیز کو دیکھ کر بھونک رہے ہوں۔ محسن نے بلند آواز میں نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور پھر آگے بڑھا۔ تبھی چمگادڑوں کا ایک ریلا ان سب کے سروں کے اوپر سے گزر گیا۔ لڑکیوں کے منہ سے بے ساخت ایک چیخ نکل گئی۔ محسن تسلی دیتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، صرف چمگادڑیں ہیں، کہتے ہوئے ارد گرد نظریں دوڑائیں، جبکہ عاطف اس کے جواب میں بولا، محسن بھائی، یہاں تو ساری وہ نشانیاں موجود ہیں جو یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ یہاں یقینی طور پر کوئی غیر مرئی طاقت موجود ہے۔ محسن نے تردیدی انداز میں سر ہلایا اور ایک بار پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ کرن کی آواز نے اس کو روک دیا۔ میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں، بہت ہو گیا ایڈونچر۔ آواز سے ہی اس کے اندر کا خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ محسن نے ایک نظر اس کو دیکھا اور بمشکل اپنے طیش پر قابو پاتے ہوئے بولا، اب تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی، واپسی کا راستہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ کہتے ہوئے اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ باقیوں نے بھی اس کی تصدیق کی اور وہ بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتی ان سب کے ساتھ چل دی۔ ارد گرد فرش ٹوٹا ہوا تھا اور دیواروں سے اینٹیں جھڑ کے زمین پر گری ہوئی تھیں، جس پر قدم جما کر چلنا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ سب پھر بھی آگے بڑھ رہے تھے۔ تبھی محسن نے سب کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ عاطف نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا محسن بھائی؟ محسن دھیمی آواز میں جواب دیتے ہوئے ایک جانب اشارہ کیا، عاطف وہ دیکھ۔ عاطف نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہے محسن بھائی؟ ایسا لگا وہاں سے کوئی گزرا ہے۔ ان سب کے دل معمول سے ہٹ کر دھڑک رہے تھے۔ عاطف نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، یہ تو مسلسل لگ رہا ہے کہ جیسے وہاں کوئی اور یا ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ آئی ایم ایف
देना आतिफ। उसने वो डिवाइस मांगी जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके सिग्नल देती है। आतिफ ने उसके कहने पर वो डिवाइस निकालकर उसको थमा दी। मोहसिन ने डिवाइस ऑन की और ऑन होते ही इसने खासी हाई रीडरेक्टिंग देनी शुरू कर दी, जैसे उसे किसी अनदेखी ताकत को डायरेक्ट कर लिया हो। मोहसिन की धीमी आवाज़ सुनाई दी, ऐसा लग रहा है कोई हमारे बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ा हो गया है। उसके जवाब में अनुषा की एक्साइटेड आवाज़ आई, ओह इट इज सो एक्साइटिंग। इसको डायलॉग मोड पर डालकर उसने बात करने की कोशिश करते हैं। इसका आइडिया मौसम को पसंद आया और उसने डिवाइस को मूव किया बगैर वहीं खड़े खड़े पूछा, क्या हम पांचों के अलावा यहाँ कोई और मौजूद है? एक दो सेकंड के वक्फे से मीटर की नीलड ने हाँ का इशारा दिया। इन सब के दिल की धड़कन मजीद बढ़ गई और जिस्म में फिरी से दौड़ गई। मौसम ने फिर इस इन मौसम ने फिर इस उस इन देखे वजूद को मुखातिब करते हुए सवाल किया, क्या आप बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं? उसके सवाल करने के एक दो सेकंड बाद सामने मौजूद बुसीदा दरवाज़ा जोर जोर से हिलना बंद होने लगा। इस खामोशी में इस दरवाजे के जोरदार आवाज़ सन्नाटे में गूंज कर माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। इस शोर से घबरा कर किरण ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। मौसम ने एक नज़र उस पर डाली और फिर इस नादीदा हस्ती को मुखातिब करते हुए बोला, ठीक है हम समझ गए, आप यहाँ मौजूद हैं। उसके कहने की देर थी कि माहौल एकदम थम सा गया और इर्द गिर्द वही सन्नाटा छा गया जो इससे पहले था। वो सब मुतात अंदाज में फिर आगे बढ़े कि एक बार फिर बुसीदा दरवाजे खिड़कियां बजने लगी। इनकी खस्ता हाली देख कर लग रहा था कि अभी गिर पड़ेंगी। जोहीर ने घबरा कर पूछा, ये क्या हो रहा है? मोहसिन इसके जवाब में बोला, जो यहाँ मौजूद है इनको हमारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो रही। जवाब में किरण तड़क कर बोली, तो ज़रूरत क्या है ऐसी चीज़ों को प्रोवोक करने की? मोहसिन ने खामोश नजर उस पर डाली मगर कुछ बोला नहीं। मगर अनुषा ने मोहसिन की हमायत में बोलना ज़रूरी समझा, तो ये सब नहीं करेंगे अगेन तो पता कैसे चलेगा कि यहाँ कोई पर्सन्स है या नहीं? वो अपने मखसूस अंदाज में नखरे से बोली। किरण ने कोई जवाब दिए बगैर चेहरा घुमा लिया। वो इस वक्त किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। इन सब ने दोबारा हिम्मत की और कदम आगे बढ़ाए कि फिजा में फिर एक हौलनाक आवाज़ सुनाई दी। आतिफ ने तेज आवाज़ में खबरदार किया, मोहसिन भाई संभल के। ख्याल से सब मोहसिन ने फिर संभल के कदम बढ़ाए और फिर जैसे भौचाल आ गया। हर तरफ से जैसे पत्थरों की बारिश होने लगी, साथ साथ सीमेंट की बड़ी ईंटें भी गिर रही थीं। एक लम्हे तो इन सबको कुछ समझ नहीं आया ये क्या हुआ कि और अगले लम्हे सभी मुखालिफ समत में इधर उधर भाग गए।